বিরতিতে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বিশ্বজয়ী ক্রিকেটারদের যে কথোপকথন সেই কথোপকথন আপনাদের শোনাচ্ছিলাম। কিন্তু বিহারের মসনদ কে জয় করবে, তেজস্বী যাদব নাকি নীতিশ কুমার আবারও সেই মসনদে বসবে, সেই দিকে আজ সকাল থেকে কিন্তু আমাদের নজর রয়েছে। বিহারে আজ প্রথম দফার ভোট গ্রহণ চলছে। আজ সকাল 7টা থেকে মূলত এই ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছে। এখনো পর্যন্ত যে মতদান প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া কিন্তু জারি রয়েছে। আজ মূলত 121টি আসন যে রয়েছে, 243 আসনের মধ্যে 121টি আসনে এই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। সকাল 7টা থেকে এই ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 121টি আসনে এই ভোট গ্রহণ চলছে এবং আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই যে বিহারে এখনো পর্যন্ত যে আমরা দেখেছি যে আসন সংখ্যা রয়েছে, মূলত আজকের যে প্রথম দফার যে ভোট গ্রহণ সেই ভোট গ্রহণের মধ্যেও কিন্তু যে স্পেশাল কিছু কি ক্যান্ডিডেটস রয়েছে। অবশ্যই আজ রাঘোপুর কেন্দ্র রয়েছে। রাঘোপুর কেন্দ্র আপনারা জানেন তেজস্বী যাদবের যে কেন্দ্র, এবং সেখানে আদৌ কি তেজস্বীকে মানুষ বেছে নেন এবং অবশ্যই বিহারের মসনদের পরবর্তীতে ঠিক কে বসবেন সেই বিষয়টিও কিন্তু সামনে আসছে। অবশ্যই এনডিএ এবং তার পাশাপাশি মহাগঠবন্ধন এই দুই জোটের মধ্যে মূলত লড়াই তো অবশ্যই রয়েছে। তার পাশাপাশি জনসুরাজ পার্টিও কিন্তু রয়েছে। এখনো পর্যন্ত ভোটিং পার্সেন্টেজ ঠিক কত এখনো পর্যন্ত জানতে চাইবো। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি অরিত্র ঘোষ। অরিত্র, এখনো পর্যন্ত বিহারে ভোট পার্সেন্টেজ কত? এখনো পর্যন্ত বলতে সময়টা একদম নির্দিষ্ট। সকাল 9টা পর্যন্ত বিহারে যে প্রথম দফার ভোট, প্রথম নির্বাচন, সেই নির্বাচনের গতি কিছুটা স্লথ রয়েছে, অর্থাৎ ভোটদানের যে গতি সেই গতি কিছুটা স্লথ রয়েছে। সকাল 9টা পর্যন্ত ভোটের হার 13.13%, এবং সকাল 9টা পর্যন্ত সামগ্রিক বিহারের যে নির্বাচন সেই নির্বাচনের হারটাই যদি 13.13% হয়, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এটা কার জন্য স্পষ্ট যে সমস্ত বিধানসভা কনস্টিটিউয়েন্সি রয়েছে, জেলা রয়েছে, সেই সমস্ত জায়গাতেও ভোটদানের যে গতি সেই গতি কিছুটা কম রয়েছে। সকাল 9টা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভার কথাই তোমাকে বলে রাখি। যেমন হাজিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের হার সকাল 9টা পর্যন্ত 13.22%, লালগঞ্জ বিধানসভায় ভোটের হার 14.96%, মহুয়া বিধানসভা কেন্দ্র সেখানকার ভোটের হার 14.49%, বৈশালী কেন্দ্রে ভোটের হার 15.30%, এবং বেগুসরাই কেন্দ্রে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে। যেমন জানাচ্ছিলাম আপনাদের, আজকে বিহারের যে প্রথম দফায় যে ভোট গ্রহণ সেই ভোট গ্রহণ চলছে ইতিমধ্যেই, এবং সকাল 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত ভোটের হার এখনো পর্যন্ত 13.13%। যথেষ্টই ভালো হার এই যে ভোট শতাংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং অবশ্যই বিহারের আজ 121টি যে কেন্দ্র রয়েছে সেই 121টি আসনই কিন্তু আজ এই ভোটদান পর্ব, এবং এইবারের যে ভোট গ্রহণ অবশ্যই তা যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। मेरे शुरुआत रोज भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। এনডিএ শিবির রয়েছে। এনডিএ শিবিরের মধ্যে নীতিশ কুমার অবশ্যই রয়েছে। নীতিশ কুমার আবারও বিহারের মসনদে বসেন কিনা সেই দিকে অবশ্যই একদিকে যেমন নজর রয়েছে আমাদের, তার পাশাপাশি মহাগঠবন্ধনের দিকেও আমাদের অবশ্যই বাড়তি নজর থাকছে। কারণ তেজস্বী যাদবকে, লালু প্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদবকে কিন্তু এই যে মহাগঠবন্ধন জোট তারা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেই দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে আমরা যদি দেখি এনডিএ তরফ থেকে কিন্তু বারংবার এই বিষয়টি বলা হয়েছে, নীতিশ কুমার অর্থাৎ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী, বিহারের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারে মূলত এই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে, বিহারে এই নির্বাচন চলবে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলা হয়নি। मेरी शुरुआत रोज भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। और मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। मेरी शुरुआत रोज भगवान के नाम के साथ होती है। और पहली बार बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद माता छठ मैया का पवित्रता शुद्धता के बाद लोकतंत्र का महापर्व में सबको भागीदारी का अवसर मिला है। जिस तरह से हम छठ पूजा सामाजिक सौहार्द के साथ ऊंच नीच के भेद के बिना मनाते हैं, जिस पवित्रता से एकजुटता से लोकतंत्र का महापर्व भी उसी तरह से मनाना चाहिए।
और सबको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए और सामाजिक सौहार्द के साथ हम अपने बिहार के लोकतंत्र की जननी का गौरव बढ़ाएं। सभी बिहार वासियों से, हर बिहारी से मेरी यही आग्रह है कि आपका बिहार गौरवान्वित हो। बिहार को जिसने गाली बनाया, बिहार को जिसने बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जिसने उद्योग चलाया, उससे मुक्ति बिहार को दिलाने का यही समय है, सही समय में करना है। जिसपे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें, घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूं, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बननी जा रहा हूं। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। लगने लगा आज बिहार के जीडीपी में, जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। बिहार में इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली है और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। बिहार में इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली है और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गाँव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा, और हम इतना लोभी नहीं है कि हमको कुर्सी पे बैठना है। बेस्ट ऑफ लक सर। हाथ का एक उधर से होकर फ्री नहीं। गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। बिहार में इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली है और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। বিহারে সকাল 9টা পর্যন্ত ভোটের যে হার তা পড়েছে 13.13%। আজ মূলত 121টি
আসনে ভোট গ্রহণ রয়েছে বিহারের 243টি যে বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে তার মধ্যে আজ 121টি আসনে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া রয়েছে এবং আপনারা যেমনটা জানাচ্ছিলাম আপনাদের যে এনডিএ জোট তার পাশাপাশি মহাগঠবন্ধন জোট এবং জনসুরাজ পার্টি মূলত এই তিন যে দলের মধ্যে যে লড়াই অবশ্যই তার মধ্যে এনডিএ এবং মহাগঠবন্ধনের যে জোট রয়েছে তাদের মধ্যেকার যে লড়াই অবশ্যই সেই লড়াই চোখে পড়বে এবং যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম বিহারের মসনদে কি আবারও নীতিশ কুমার আসবে সেই প্রশ্ন যেমন একদিকে বিহারবাসীর মনে রয়েছে তার পাশাপাশি তেজস্বী যাদব কি আগামী মুখ্যমন্ত্রী হবেন সেই প্রশ্নও কিন্তু রয়েছে আপনাদের যেমনটা জানাচ্ছিলাম আরো একবার জানিয়ে রাখি এনডিএর তরফ থেকে ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে মূলত 101টি করে আসনে বিজেপি এবং নীতিশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড তাদের পক্ষ থেকে 121টি আসনে লড়াই করা হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি আমরা যদি দেখে থাকি 29টি আসনে রামবিলাস পাসওয়ানের পুত্র অর্থাৎ চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি সেই এলজেপি কিন্তু লড়াই করছে পাশাপাশি রয়েছে অবশ্যই হাম এবং আরএলপি অন্যদিকে যদি মহাগঠবন্ধনের দিকে আমরা সেই ছবিটা একবার আপনাদের সামনে তুলে ধরি ইতিমধ্যে মহাগঠবন্ধনের কংগ্রেসের তরফ থেকে যেমন 60টি আসনে লড়াই করা হচ্ছে অন্যদিকে আরজেডি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জনতা দল তারা কিন্তু 143টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে অবশ্যই তাদের ভাগ্য পরীক্ষা তো রয়েছে এবং আজকে 121টি আসনের মধ্যে মূলত 1314টি প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা রয়েছে অবশ্যই এবং ইতিমধ্যেই 7টা থেকে যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এখনো পর্যন্ত অর্থাৎ সকাল 9টা পর্যন্ত যে ভোট পার্সেন্টেজ হার সেই ভোট পার্সেন্টেজ যদি আপনাদের জানিয়ে রাখি 13.13% এখনো পর্যন্ত ভোট পড়েছে বলে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে 18টি জেলায় 121টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা 3.75 কোটি অন্যদিকে এই যে 1314 জন প্রার্থী রয়েছে ভোটের সময় কিন্তু 7টা থেকে 6টা একদিকে রয়েছে এনডিএ শিবির অন্যদিকে রয়েছে মহাগঠবন্ধন জেডিইউর যে আসন তা রয়েছে 57 বিজেপির আসন রয়েছে 48 অন্যদিকে মহাগঠবন্ধনের প্রথম দফায় যে জোট ভিত্তিক আসন আপনাদের জানাই আরজেডির তরফ থেকে 73টি এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে 24টি আসনে একেবারে যে প্রথম দফার যে লড়াই অর্থাৎ আজকে মূলত 121টি আসনে লড়াই হচ্ছে এবং তার মধ্যেই কিন্তু এই আসনগুলি রয়েছে তার পাশাপাশি 119টি জায়গায় লড়াই করছে প্রশান্ত কিশোরের জনসুরাজ পার্টি প্রথম দফায় 119টি আসনে লড়াই করছে প্রশান্ত কিশোরের জনসুরাজ পার্টি রাজাপাকার বাজওয়ারা বেলদৌর গড়বারাম এবং বিহার শরীফ কিন্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি রয়েছে এখনো পর্যন্ত যে ভোট পার্সেন্টেজ আপনাদের জানাচ্ছিলাম সকাল 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত 13.13% ভোট পড়েছে আমরা কথা বলবো আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে फोन लाइन রয়েছেন প্রতিনিধি वर्षा राय वर्षा जो जानना चाहूंगी आपसे कि अभी तक वोट जो मतदान का जो प्रक्रिया है उनकी सामग्री तस्वीर क्या उठा रही है जी मैं बता दूं आपको जो पहले फेज की वोटिंग है आज जो चल रही है बिहार में 121 सीटों पर तो ये काफी अभी जो रेशियो है अभी से 1 घंटे पहले जो 12% का था अभी वो बढ़ के 13.13% तक पहुंच गया है वोटिंग रेशियो कई जिलों में ये प्रतिशत ज्यादा भी है सहरसा में जैसे हमने 15% वोटिंग देखी लोगों में काफी उत्साह है भारी संख्या में घर से निकलकर आ रहे हैं और इस बार ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं जो बाहर के बिहारी जो निवासी हैं जो बाहर रहते हैं वो भी बिहार पहुंचे हैं कोई तमिलनाडु से कोई पश्चिम बंगाल से कोई गुजरात से पहुंचे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोट डालने के लिए और अभी काफी बड़े नेताओं ने भी वोट दे दिया है जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव उन्होंने अपने परिवार के साथ दिया डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी जी उन्होंने भी वोट डाल दिए हैं गिरिराज सिंह ने वोट डाले एनडीए की तरफ से तो अभी हम जो देख रहे हैं कि वोटिंग अब धीरे धीरे जैसे जैसे अभी दोपहर का समय नजदीक आ रहा है और भीड़ बढ़ती हमें दिखाई दे रही है इनफैक्ट जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वहां भी एक चीज देखने को मिली कि वहां भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जो ग्रामीण महिलाएं हैं खासकर तो ग्रामीण महिलाएं अपने घरों में काम छोड़कर वो निकली हैं कि पहले हम वोट देंगे फिर घर के काम होंगे हाँ वर्षा अभी तक हम देख रहे हैं कि 9 बजे तक 13.13% वोट अभी तक आया है तो ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज कम है या ज्यादा है ये 9 बजे के अगर अभी कलेक्टिवली हम एक इमेज देखें तो ये परसेंटेज पिछले चुनाव जो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे
उनके मुकाबले ये परसेंटेज काफी ज्यादा है और ये बढ़ने की आशंका अभी और है कि ये परसेंटेज धीरे धीरे और बढ़ेगा। शाम 6 बजे तक मतदान होना है, सुबह 7 बजे से शुरू है, अभी तक 15% कुल पहुंच गया है ये, और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है इसमें, क्योंकि इस बार लोगों में खासा उत्साह है। बिहार में एक बदलाव की लहर लोग चाह रहे हैं, लोग काफी सामने आ रहे हैं कि वोट डालना बहुत जरूरी है, बिहार को चेंज चाहिए, बिहार में चीजें सुधरनी चाहिए, बदलनी चाहिए। तो इस तरह से भी लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं, महिलाएं खासकर, और महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, और जो यूथ वोटर्स हैं वो भी इस बार हमें देखने को मिला है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो यूथ वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा तस्वीर में दिख रहे हैं, वो काफी एक बड़े रेशियो में निकल के आ रहे हैं वोट देने के लिए। वर्षा, हम लोग जानते हैं कि महिला जो मतदाता है वो बिहार के वोट पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो क्या भीड़ कैसे दिख रहा है महिला मतदाता के? जी, मैं बता दूं आपको कि जो महिला वोटर हैं, जो महिलाएं हैं वोट देने के लिए, वो काफी ज्यादा संख्या में आ रही हैं मतदान देने। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मतदान फिर जलपान का कॉन्सेप्ट लोग काफी बड़े लेवल पे फॉलो कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं खासकर, उनका ऐसा कहना भी है कि हम घर के काम छोड़ कर आए हैं, हम पहले वोट डालेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर काम होंगे, सारे काम बाद में, पहले वोट। और सरकार की तरफ से भी जो महिलाओं को लुभाने की कोशिशें की गई हैं, जो महागठबंधन की तरफ से भी जो स्कीम्स है, तो महिलाएं काफी ज्यादा प्रेरित है इन सारी चीजों की वजह से, और वो चाह रही हैं कि उनकी स्थिति में और ज्यादा बदलाव आए। खास बहरहाल पिछली जो अभी से 10-15 साल पुराना हम जो इमेज देखे स्टेट का, तो स्थिति थी महिलाओं की, उससे तो काफी ज्यादा बेहतर स्थिति में है अभी महिलाएं। लेकिन महिलाएं और चाह रही हैं कि और उन्हें सशक्तता मिले, उन्हें थोड़ा स्कोप बढ़े बिहार में महिलाओं की तरक्की के लिए। तो इस वजह से भी अब महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं, काफी ज्यादा प्रेरित हैं। और अब खासकर तस्वीरों में हम ये देख सकते हैं कि काफी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं कि हमें वोट करना है, हमें बिहार में हम एक बहुत मजबूत वोट बैंक के तौर पे देखा जाता है महिलाओं को, तो महिलाएं काफी ज्यादा संख्या में अभी निकल के वोट कर रही हैं। वर्षा, अभी तक इलेक्शन को लेकर कोई घटना घटी है? जी, इलेक्शन को लेके ऐसी कोई बड़ी घटना तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन कई इलाकों में जो ईवीएम खराब होने की खबरें थी वो आ रही हैं। वैशाली में, दानापुर में, बहुत जगह ऐसी जगहों में ईवीएम खराब होने की वजह से जो लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया, वोट चोरी के नारे भी लगने लगे। और अभी बहुत जगह ईवीएम खराब होने की वजह से आधे 1 घंटे की देरी से इलेक्शंस शुरू हुए। अभी खबर आई थी कि कहीं पे जो भाजपा के कार्यकर्ता है पर्ची बांटते दिखे, तो इस वजह से उनपे भी कड़ी कार्रवाई की गई है। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। और यही सारी चीजें हैं। बहुत जगह हम बिहार में वोट बहिष्कार भी देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कुछ जिलों में वोट बहिष्कार की खबरें आई थी सामने। क्यों वो लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं? जी, उनका कहना है कि उनके जो तत्कालीन विधायक हैं या उनके क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया गया है। वो लोगों का कहना है कि हम वोट दें ना दें बात बराबर है, काम हो नहीं रहा है। तो इस वजह से भी बहरहाल प्रशासन लगा हुआ है, उन्हें समझाने में लोग लगे हुए हैं। जो चुनाव आयोग से भी प्रतिनिधि पहुंचे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये वोट बहिष्कार की चीजें खत्म हो, लोग आगे आए, बाहर निकलें, वोट दें। तो ये सारी चीजें भी चल रही है। वर्षा, आप कह रही थी कि अभी तक कुछ विक्षिप्त घटना घटी है, उनको लेकर विरोधी पक्ष का क्या मत है? विरोधी पक्ष का ये कहना है, जो विपक्षी है उनका ये कहना है कि ये बीजेपी की एक तरह से देखा जाए कि ये बीजेपी करवा रही है, या वोट चोरी की जो मामले उजागर किए गए, जो बीजेपी पे एक बहुत बड़ा आरोप लग चुका है, एनडीए पे काफी बड़ा लेबल लग चुका है वोट चोरी का। तो जो अभी ईवीएम खराब होने की जो खबरें आ रही हैं, इस वजह से उन्हें और मुद्दा मिल गया है बोलने का कि ये उनका ये पैटर्न है, ईवीएम खराब होगा, वोट गलत पड़ेंगे, वोट गलत काउंट होंगे, ऐसे ही एनडीए जो है, भाजपा जो है, वो वोट चोरी करती है। तो इन सारी चीजों को लेके काफी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल है कि विपक्षियों को बोलने का एक मुद्दा मिल गया है कि अगर ईवीएम खराब है मतलब जरूर ही वोटिंग में छेड़छाड़ की जा रही है, कुछ दिक्कतें आएंगी, इस वजह से ही बिहार में
चुनाव में बीजेपी घोटाले कर सकती है और गलत तरीके से चुनाव जीत सकती है। तो ये सारी खबरें अभी आ रही हैं। बहरहाल अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं आई है। ये जो ईवीएम खराब थे या जो भी दिक्कतें आ रही थी, इनको रिजॉल्व कर लिया गया है। आधे एक घंटे की देरी से वापस से मतदान शुरू हो गए। वर्षा, वो लोग ये एलिगेशंस को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं? जी, उनका कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पे ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ईवीएम खराबी की जो खबरें आ रही थी, ईवीएम खराब थे या ईवीएम में दिक्कतें थी, तो इलेक्शन कमीशन द्वारा ही इस पे जांच करवा के इसको वापस से प्रॉब्लम रिजॉल्व करके रिज्यूम कराया गया। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम अपनी तरफ से सारे हम अपना काम सही से कर रहे हैं। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उसको निष्पक्षता के साथ निभा रहे हैं। और बाकी विपक्ष का तो कहना ही है कि पक्षपात होता है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है सरकार के साथ, इलेक्शन कमीशन सरकार के कहने पे काम कर रहा है। तो ये सारी तो निराधार बातें चलती रहती हैं। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि जो भी गड़बड़ी थी, जो भी खराबियां थी, उसे रिजॉल्व कर लिया गया है और वोटिंग रिज्यूम हो गई है। वर्षा, ये जो विपक्ष है वो लोग जैसे कि एलिगेशंस आ रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, वहां पर सेंट्रल फोर्स का क्या रोल है? देखिए, सेंट्रल फोर्स की जहां तक बात करें तो ऐसा कुछ तो नजर आ नहीं रहा है कि सेंट्रली बहुत ज्यादा प्रभावित हो, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत वास्ट है और इस वजह से अभी तो फिलहाल बिहार का जो ग्राउंड सिचुएशन है वो यही है कि यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल की राजनीति है, जो स्टेट लेवल की राजनीति है, वही हावी है अभी। और फिलहाल जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके वाद विवाद, जो पक्ष विपक्ष की जो बहस है वो तो चलती रहती है। और अभी यही है कि अभी जो अगर हम ग्राउंड पे लोगों से जाने तो लोगों का यही कहना है, फिलहाल वोटिंग के टाइम पे लोग काफी जागरूक हैं। ऐसा कहाँ वोट डालना है, किसे डालना है, ये लोग नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपको वर्षा। आपका दूसरा कौन सा है? दरभंगा सर। आपका कौन सा है? सर मेरा मुजफ्फरपुर बेगूसराय। कौन सा दिखाना चाहिए? বিহারে আজ প্রথম দফার ভোট গ্রহণ, 121টি আসনে সেই ভোট গ্রহণে এখনো পর্যন্ত এই যে ভোট গ্রহণ সবে মাত্র শুরু হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কিন্তু বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অবশ্যই বেশ কিছু অভিযোগ এখনো পর্যন্ত এসেছে সামনে, নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। এবং শুধুমাত্র তাই নয়, আপনাদের যেমনটা জানাচ্ছিলাম যে আজ সকাল 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত মূলত 13.13% ভোট যে পার্সেন্টেজ সেটা ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে। এবং তার পাশাপাশি বিহারে সামগ্রিকভাবে শান্তিতে ভোট হলেও এখনো পর্যন্ত বেশ কিছু অভিযোগও সামনে এসেছে। অবশ্যই বিরোধী যে মহাগঠবন্ধন জোট, তাদের তরফ থেকে বেশ কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। তারা সেই অভিযোগ জানিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত সেই বিষয়টিও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয় অবশ্যই খতিয়েও দেখা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত সকাল 7টা থেকে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, প্রায় 4 ঘন্টা প্রায় অতিবাহিত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত বিহারের যে সামগ্রিক যদি ভোট গ্রহণ চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরি, যে ভোট গ্রহণ চিত্রে কিন্তু কোথাও সেরকম কোনো বড় অশান্তির কোনো ঘটনা সামনে আসেনি, কোনো অভিযোগ সামনে আসেনি। যদিও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সামনে এসেছে, ভোট চোরের কিছু অভিযোগ কিন্তু করা হয়েছে মহাগঠবন্ধনের তরফ থেকে। বিজেপির বিরুদ্ধে মূলত সেই অভিযোগ সামনে এসেছে মহাগঠবন্ধনের তরফ থেকে। অবশ্যই সেই অভিযোগগুলিকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্বাচন
কমিশনের তরফ থেকে। নির্বাচন কমিশন সেই বিষয়টিও ইতিমধ্যেই জানিয়েছে। আজ সকাল 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত যে ভোট পার্সেন্টেজ আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখি, 13.13%। এখনো পর্যন্ত প্রায় 4 ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে ভোট গ্রহণের। যে ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, আরজেডি প্রার্থী ইতিমধ্যে ভোট দিয়েছেন। সিওয়ান কেন্দ্রতে এই ভোট ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। আপনাদের জানাই আজ 121টি মূলত যে কেন্দ্র রয়েছে, সেই কেন্দ্রে এখনো পর্যন্ত যে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া, সেই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। সিওয়ান যে কেন্দ্র রয়েছে, সেই কেন্দ্রের দিকেও আমাদের নজর রয়েছে। আরজেডি প্রার্থী मुस्कुराहट देखी जा रही है। सब ठीक है भाई। बड़ा बड़ा हमला किया। उसामा साहब है हमारे साथ बातचीत के लिए। आप आगे कैंडिडेट आगे चले जाइए। সিওয়ানে আরজেডি যে প্রার্থী অর্থাৎ অবধ বিহারী চৌধুরী, তিনি ইতিমধ্যেই তার যে মতদান করেছেন, তার যে ভোট দান করেছেন তিনি ইতিমধ্যেই। এবং এই যে কেন্দ্রটি রয়েছে আপনাদের একবার জানিয়ে রাখি, ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে মঙ্গল পান্ডে এবং অন্যদিকে আরজেডির তরফ থেকে অবধ বিহারী চৌধুরী, এদের মধ্যে মূলত এই লড়াই কিন্তু দেখা যাচ্ছে।